class, welcome back. Today I'll go with numericals of light. I promised you in my last video that I'll go with numericals today. Students, I hope you have practiced for the positive and negative sign of concave mirror and convex mirror. Yes? Did you practice, student? Yes. Now, if you have hold those positive negative signs, it will be easier for you to go with the numericals. Yes, shall I start? Okay. Now, I just want to remind once again that this is the concave mirror which I have drawn like this, and we'll put a graph like this, and in graph in the x-axis and y-axis, the upper side it is positive, the right side, always if I say left and right side, then absolutely you can go with this perfect. Okay, now right side it is always positive. If I see the graph, upside that is positive, downward negative, and left side it is negative. And when I am talking about convex mirror, so now the convex mirror, the sphere is towards this side. So center of curvature is towards, yes student, right side and left side. So center of curvature is on right side and half of the center of curvature is focused, that is again right side. What I mean to say, that if it is on right side, that means it is behind the mirror. And object is always has to be placed in front of the mirror, right? So object is only negative where in convex mirror, and all other factors will be in positive. This Cartesian science, which is very, very important. Yes, shall I start? Okay, come. These are the numerical pattern I have done here. One by one, I'll go with it. Okay. Now, first numerical is complete. Dentist use concave mirror to see the tooth of a patient of focal length 3 cm, which is held at a distance of 2 cm. Find position of image, nature and magnification. And I told you about magnification, that it is a ratio of height of the image to that of an object. Last time I think I missed that it has no unit, because it is the ratio. So small m is equal to hi upon h dash is equal to student minus v upon u. Clear? So in every numerical we'll also have to find, if height is given, then we can easily find with the, yes student, magnification. Ready? Now see. Now this is the numerical in front of you. Now what do you see one by one? First you will see that focal length 3 cm. So focal length, if it is 3 cm, then this is the focal length. So I'll write in front of it 3 cm. Positive, negative, I'll tell you right now. Now, which is held at a distance of 2 cm. So, 2 cm is object held at a distance of. What is held? Yes, dentist use concave mirror. So, concave mirror is held in front of the, that is the distance of the object. Okay. And find position of image, nature and magnification. So V question mark, M question mark. Now first immediately what we will do, फटाफट आप इस तरीके से concave mirror बना लेंगे और आप उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे. आपको जैसे ही पता चल गया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अपसाइड इट इज पॉजिटिव, वेरी इजी टू ट्रेस. कैसे? U 2 cm. अब ऑब्जेक्ट इज, वी नो, आई ऑलवेज टोल्ड दैट ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा रहता है, और मिरर के सामने अगर है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो U होता है, विच इज नेगेटिव. सिंपल. ओके, सो हम 2 के आगे माइनस लगा देंगे. फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ 3 cm गिवन, अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, क्योंकि हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फोकल लेंथ. सो एफ भी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव. क्लियर? अब हम वी देखेंगे, इस साइड बनेगा कि इस साइड बनेगा आफ्टर कैलकुलेशन. ओके, जैसे हमें ये पता चल गया, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फटाफट हम मिरर फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. और हमें निकालना है इमेज, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. जहां आपको ये मिल गया,
दैट इज v निकालने का। बस आप f की वैल्यू डालेंगे, u की वैल्यू डालेंगे और आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। एंड दे आर आस्किंग v, दैट मीन्स इट इज इन सेंटीमीटर। सपोज निकालने के बाद आपका ऑलमोस्ट आई थिंक v 6 सेंटीमीटर आएगा। नाउ दिस इज प्लस और माइनस, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 6। अब देखो अगर ये प्लस है, इमेज है, तो इस साइड तो माइनस है, दैट मीन्स इमेज यहां कहीं बनी होगी। क्योंकि आंसर आपका +6 में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको नेचर समझ आ गया? क्योंकि राइट साइड अगर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, कनकेव है, सो आपका जो इमेज बनेगा दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, एंड मैग्निफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जहां हमें मैग्निफिकेशन आ गया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। यस, v हमें पता चल गया, u आपके क्वेश्चन में है, आप इसमें पुट करके निकाल लेंगे। स्टूडेंट इजी। बस आपको अगर साइड में ये छोटा सा बना लोगे ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट इज ऑलवेज कमिंग फॉर 3 or 5 marks. Yes, now next numerical. This is the concave mirror that produces and where the object is placed in front of the concave mirror 5 centimeter and the focal length is given 10 centimeter. Clear? फटाफट हमें क्या करना है, concave mirror बना लेना। Yes, पॉजिटिव, देखो इस तरीके से ऊपर की साइड पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, u हमारा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, तो u हमारा -5 सेंटीमीटर, और इस साइड है तो c और f भी हमारा राइट साइड है, तो फोकल लेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। बस सिंपल। यस, और आपको सेम इसी पैटर्न से v और m निकाल लेना है। क्लियर स्टूडेंट? इस तरीके से आप अपने आप से न्यूमेरिकल बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां आपको माइनस प्लस आ गया, फुल मार्क्स, आंसर एलसीएम वगैरह निकाल के आप फुल मार्क्स ले आएंगे। नाउ अगेन थर्ड, नाउ यू, अब अगेन हम फटाफट कनकेव मिरर इन्होंने कह ही दिया, तो हमारा प्लस प्लस प्लस, ये देखो हमेशा ये रेडी पोजीशन कर लोगे और ऑब्जेक्ट खड़ी कर दोगे in front of the mirror. So it is 20 centimeter, understood? Left side? Yes, left side. And this is right side. Radius is given. I told you that center of curvature से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा रेडियस होगा, और रेडियस का हाफ हो जाता है फोकल लेंथ। तो रेडियस हमारा इस साइड है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा ना। फोकल लेंथ आपको नहीं दिया रहेगा, फोकल लेंथ आपको खुद निकालना है, दे विल गिव यू द रेडियस। कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमें पता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, सो r/2। तो हम क्या करेंगे, -30/2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ मेरा इस साइड है, वो वैसे भी माइनस में आएगा। जहां फोकल लेंथ आ गया, अब आपको HO भी गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखो ऊपर की साइड है, सो प्लस होगा माइनस होगा, प्लस, ये देखो +5 सेंटीमीटर। यस, बस आपको HI और V निकालना है। V तो हम मिरर फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और HI/HO ये फॉर्मूला हमने m इज इक्वल टू में करा था -v/u। बस आपको क्या गिवन है, HI निकालना है, HO आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में +5। तो अगर आप इसका फॉर्मूला फ्रेम आउट करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा HI इज इक्वल टू HO मल्टीप्लाइड बाय -v/u। बस ये आप सिंप्लीफाई करके अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो ये आपको 2 मिनट में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस HO की वैल्यू डालो -v, क्योंकि v आपने निकाल लिया था, ओके, और अपॉन u की वैल्यू डलेगी, ओके। बाकी मैथमेटिक्स दैट इज अप टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, concave mirror produces magnified image which is real magnified image of -3, real magnified image of 3। माइनस उन्होंने नहीं दिया था, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, दैट मीन्स क्या था, नीचे की साइड। रियल एंड इन्वर्टेड तो यही होता है ना कनकेव मिरर में, और इन्होंने मिरर बता दिया। तो अगर नीचे की साइड इमेज है तो मैग्नीफाइड, रियल की बात जब भी हो रही है हमें नेगेटिव ले लेना है, तो हम मैग्निफिकेशन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव, और इन्होंने u दिया हुआ है वो भी हमारा +10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +10? नहीं, u हमारा माइनस में ही होगा बेटा,
यस, u तो हमेशा ही माइनस में होगा और हमें v निकालना है, तो m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, है ना। और तो आपका अगर v निकालना है हमें तो क्या हो जाएगा, m इंटू यू, m की वैल्यू माइनस में है, u की वैल्यू आपकी माइनस में है, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस v इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 10। बस उसके बाद आप निकाल लेंगे। यस, नेक्स्ट हम कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। अब कन्वेक्स मिरर में सी, दिस इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट दी हुई है इन्होंने 7 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इन्होंने दे दिया है 18 सेंटीमीटर, 18, एंड यू गिवन है हमारा 20। आई थिंक दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है। ओके, नाउ आपको निकालना है v और HI। यस स्टूडेंट, आप बोलो। कन्वेक्स मिरर है तो हम अब ये वाला कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। देखो, इट इज राइट साइड, जो स्क्वायर बनेगा ना वो हमारा राइट साइड, तो हर चीज राइट साइड में है। u सिर्फ हमारा नेगेटिव, ये देखो u, एकदम क्लियर डायग्राम, हर कुछ उस साइड है, ओनली आपका जो u है वो हमारा लेफ्ट साइड है। तो जब u होगा तो माइनस, और बाकी सब आपका HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऊपर की साइड है तो प्लस। बस आपको ये ग्राफ अगर होल्ड हो गया, कुछ भी नहीं करना, HO और फोकल लेंथ आपका राइट साइड में होगा क्योंकि ये मिरर कन्वेक्स है, तो आपका पॉजिटिव। बस फॉर्मूला वही डलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। यस, एंड HI, अगेन HI निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। बस से प्रैक्टिस की जरूरत है स्टूडेंट्स। 10th क्लास वेरी इजी, न्यूमेरिकल अगर आपको होल्ड हो गया 3 और 5 नंबर का तो यहीं पे आपको आ गया सारा। बाकी थ्योरेटिकल है, रे डायग्राम वगैरह आते हैं, ज्यादा इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, ऑल टेक्निकल इज देयर। Yes, and one question is here, this is in your NCERT, if the magnification of the plane mirror is +1, what is the meaning of this? Now +1 ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया था मैग्निफिकेशन रियल इन रियल, तो आपका नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन अगर रियल इमेज बन रही है, रियल दिया है, तो दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। बट प्लेन मिरर में हमें पता है हम क्या अपने को सीधा ही देखते हैं। यस, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये अंडरस्टूड है। तो अगर वो प्लस है दैट मीन्स व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अब आ जाओ, जहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा वहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इट मीन्स दैट आपकी जितनी हाइट है प्लेन मिरर के सामने एग्जैक्टली इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज जो आपकी बन रही है, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुई है अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने, यू कैन सी योर हाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इमेज फॉर्म्ड। ओके, सो +1 का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव, अपोजिट। जितना डिस्टेंस आप मिरर के सामने खड़े हैं उतना ही डिस्टेंस में आपका इमेज फॉर्म होगा, बट ऑपोजिट, उस तरफ से दिखेगा। ठीक है, एंड हियर लेटरल इन्वर्जन इज देयर, लेफ्ट आपका राइट दिखता है, राइट आपका लेफ्ट दिखता है, ये सिर्फ प्लेन मिरर में। अदरवाइज HI इज एग्जैक्टली इक्वल टू HO and distance of the object is exactly equal to the distance of the image which is formed inside the mirror. Yes, so this is again very important, आपको लैंग्वेज में इस तरीके से लिख देना and you will get full marks. Okay, so go with your, yes student, NCERT book और any guide book if you have got, and mirror के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बैठ करके प्रैक्टिस कर लो। Now in my next class I'll go with refraction. Refraction, this is the second part of the chapter. Reflection is clear. Any of the doubt, please, where? In my comment section. Yes, 10th class, I hope you understood these numericals, but best part, this is the thing, if you have practiced, that means it will be easier for you. Okay, 10th class? Yes, don't miss my next video. I'll start with refraction and glass slab, refractive index. These are so many new terms we are going to. Yes, I'll explain you all. Okay, thank you so much 10th class.
God bless you all. Please subscribe. Okay.